So, as you know, we are going to talk about syntax, that is all about structures, and we cannot understand structure without the parts. So, we must understand the parts that that are very important. If you read this sentence, wow, the quick brown fox gracefully jumps over the lazy dog. So, within this sentence, all the parts of a language or parts of speech have been given. So can any one of you identify that which word belongs to which category? सबसे पहले wow जो है word, can you tell me this belongs to? Yes, yes, students, say something. Sir, interjection. Shabash. And the quick brown fox. So what is brown, what is quick? Brown is brown fox. Is an adjective. Adjective, shabash. And quick? Adverb. 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 Excellent, excellent. And what is fox? It's a noun. Noun. Excellent, excellent. So gracefully jumps. What is this? Verb. Action को शो करा रहे हैं. What is gracefully? It's a manner. So it is an adverb. 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 Very good. Because it modifies jumps. Verb. Okay. And over. What is over? Preposition. Preposition. The Article. 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 Lazy dog. Lazy. Adjective. Adjective. And dog is noun. Very Noun. excellent. So within this single sentence, you can see that all all parts of speech have been given. Okay, right. So the parts of speech means that every word is a part of language. So I already mentioned that these are divided into two categories. So can you mention what are the two main categories? I mentioned that in the class. These two categories are called content words and functional words. Yeah. Yes. So in content words, you will see that content words carry the main meaning, can stand alone, and include noun, verb, adjective, adverbs. You know very well about nouns, adjectives, verbs and adverbs already आपने अभी identify किया. So these four categories belong to content words. Means कि ये वो words हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं होगा जुमले में. If there is no noun or no verb, तो इसका मतलब sentence complete नहीं है, meaning complete नहीं है. But on the other hand, if we see, the functional words are the words which just help to complete the meaning, right? They actually don't have their own meaning, but they complete the meaning. जैसे आर्टिकल द, कोई इसका अपना मीनिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जब वर्ड ये आर्टिकल किसी के साथ लगेगा तो ये तीनों जो हैं ये अलग अलग मीनिंग देंगे. सेम इज द केस विद द प्रेपोजिशन लाइक ओवर, इन, ऑन. सो ये भी कनेक्ट करेंगे, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे. कंजक्शंस का भी यही काम है, ठीक है, कि वो कनेक्ट करते हैं. और इंटरजेक्शन जैसे हमने अभी अभी देखा, वाह. सो दीज आर द फंक्शनल वर्ड्स. सो एक्चुअली our whole parts of speech or all parts of speech are divided into two main categories: content words and functional words. Nouns में आगे, ये nouns की types हैं, आपको ये पता होनी चाहिए कि noun की types में common noun कौन सा है, concrete कौन सा है, और proper कौन सा, और abstract कौन सा है. तो do you know what is abstract noun? Can any one of you define abstract noun? That which cannot be touched, but these are feelings or emotions. Yeah,
So actually we cannot touch, we cannot see, but these could be a kind of feeling, emotions, state, right? सर लेकिन इसमें तो आइडिया भी रिप्रेजेंट हो सकता है या नहीं, मतलब वी कैन एक्सप्रेस एनी आइडिया उसमें। हाँ हाँ, obviously idea कोई है, that is also we can express, the idea is also abstract, right? So इनमें जो थोड़ा सा complicated था, that was abstract, तो ये हमें पता होना चाहिए. After that, you know, what is pronoun? That replaces a noun. Yeah, and what is the purpose of noun, a pronoun? Why we use pronoun? सर क्योंकि हम बार बार नेम को तो रिपीट तो नहीं कर सकते हैं ना उसमें। To avoid repetition. So here is the keyword, to avoid repetition. ताकि हम बार बार उस noun को repeat ना करें, so we use some pronouns. So there are 5 types of pronoun. Personal pronoun, like ये आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल, जो सब्जेक्टिव हालत में इस्तेमाल होते हैं, I, you, he, she, it, we, they, etc. तो possessive, जो possession को शो करते हैं, my, your, his, her, its और their. And reflexive, जो self वाले होते हैं, myself, yourself, himself. And then demonstrative, जो demonstrate करते हैं. और indefinite pronoun, क्योंकि ये everyone, somebody, anything, so ये जो है, ये हमारे पास आ जाते हैं indefinite pronoun, जो specific नहीं होते, non specific हैं. आफ्टर दैट वर्ब, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है मैंने. एक्शन वर्ब क्या होता है, जैसे रन, गो, ईट, ड्रिंक, ये सारे एक्शन वर्ब हैं. सो आई टॉक्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. बड़ा क्लियर मैंने क्लास में सिखाया था. If you remember, I taught you that sometimes just like is, when there is a noun or an adjective after these verbs, so it is a linking verb. And when there is an action verb after these verbs, so that is helping verb. For example, she is a teacher, so ये linking verb है. लेकिन अगर मैं कहूँ she is teaching, तो यहाँ पे is जो है वो क्या हो जाएगा, वो helping verb हो जाएगा instead of linking verb, क्योंकि वो link नहीं कर रहा, वो नाउन को या प्रोनाउन को लिंक नहीं कर रहा, बल्कि वो एक्शन को हेल्प कर रहा है. दिस इज व्हाई दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है. सो दिस डिफरेंस शुड बी वेरी विजिबल टू ऑल ऑफ यू, कि जब कोई, जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, जब इनके आगे एक्शन वर्ब आएगा, जैसे ये है will attend, एक्शन वर्ब, जब एक्शन वर्ब आएगा तो दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब, देन will ये जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा. फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव के बारे में मैंने बताया था आपको कि ट्रांजिटिव वो है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, जैसे शी रोट व्हाट, अ लेटर. शी टोल्ड whom, मी, तो नाउन आएगा या प्रोनाउन उसके बाद में आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा. ये ट्रांजिटिव वर्ब है, रोट. और अगर इंट्रांजिटिव की, तो जो एक्शन को रिसीव नहीं करता, जिसपे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता. दे स्लीप, तो यहाँ पे आगे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता व्हाट, ना ही क्वेश्चन हो सकता है whom. ठीक है. तो ये दोनों एक बड़ी निशानी है ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए. व्हाट और whom जो है वो क्वेश्चंस बनाते हैं. रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो ईडी फॉर्म बनाते हैं, और इरेगुलर वो वर्ब होते हैं जो दोनों फॉर्म्स या तीनों फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. राइट. आफ्टरवर्ड्स एडजेक्टिव्स और एडवर्ब की बात करें, तो एडजेक्टिव्स आपने पहले बता दिया कि वो होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं. तो इसकी भी 5 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी को शो करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल गार्डन. क्वांटिटेटिव वो होता है जो क्वांटिटी को शो करते हैं, 3 बुक्स. और डिमॉन्स्ट्रेटिव, जैसे दिस कार, दैट कार, दीज कार्स, दोज कार्स, तो ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव है. पोजेसिव है माई हाउस. और इंट्रोगेटिव विच, हु, ये सारे इंट्रोगेटिव आएंगे. ठीक है ना. और एडवर्ब का काम आपको पता है कि एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स. तो ये खास तौर पे इनका क्वेश्चंस का आंसर्स देते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन. राइट. सो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हाउ का आंसर देता है. शी स्पीक्स सॉफ्टली,
हाउ सॉफ्टली। एंड एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो आपको व्हेन का आंसर देता है, प्लेस जो है वो वेयर का आंसर देता है, डिग्री जो है वो हाउ मच का आंसर देती है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो हाउ ऑफन का आंसर देती है। ठीक है जी। उसके बाद फ्रेजेस की बात कर लें तो नाउन फ्रेज, लेट्स टॉक अबाउट नाउन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज जो है, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन। अब यहां पे द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये जो है ये एक नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, और ये एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। जैसे आई विजिटेड अ ब्यूटीफुल हाउस। अब अ ब्यूटीफुल हाउस यहां पे एज ए ऑब्जेक्ट है, लेकिन है ये भी नाउन फ्रेज है। और मैंने आपको बताया कि नाउन फ्रेज की एक निशानी बहुत बड़ी है, आप उसको किसी सिंगल नाउन या प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करके देख लें। जैसे द इंटेलिजेंट स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन। अब ये पूरे फ्रेज को द इंटेलिजेंट स्टूडेंट को आप ही के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ही आंसर्ड द क्वेश्चन। ठीक है। इसी तरह द टॉल बॉय इन द क्लास। अब ये पूरे का पूरा फ्रेज जो है दैट कुड बी रिप्लेस्ड विद सिंगल नाउन और प्रोनाउन। आप इसकी जगह लिख सकते हैं अली प्लेज बास्केटबॉल, या आप लिख सकते हैं ही प्लेज बास्केटबॉल। तो यहां पे ये पूरा फ्रेज जो है वो किसी भी प्रोनाउन या नाउन से रिप्लेस हो जाता है। सेम इज द केस विद द रेस्ट ऑफ द phrases. So let's talk about verb phrase. अब ये verb phrase क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था क्या सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। तो वो ये शी से नाउन फ्रेज हो जाता है और यहां से ये बाकी वाला सारा जिसको प्रेडिकेट कहते हैं वर्ब फ्रेज हो जाता है। लेकिन अगर हम बेसिक लेवल पे सीखें तो वर्ब फ्रेज वो होता है जो इज, एम, आर, वॉज, वर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा हो और उसके साथ जो वर्ब होता है उसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। ये देखें, हैव कंप्लीटेड, विल अटेंड, was teaching, can solve। तो यहां पे मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आ रहा होता है वो होता है हमारा वर्ब फ्रेज। द थर्ड वन इज prepositional phrase। prepositional phrase starts with the preposition like in, और उसके बाद एक नाउन फ्रेज के साथ ये कंबाइन होगा और एक पूरा फ्रेज prepositional phrase बन जाएगा। The students are sitting in, ये preposition, the classroom, तो ये बाकी नाउन फ्रेज है, तो ये पूरा फ्रेज बन गया prepositional phrase। The book is on the table। अब ये on preposition है और the table जो है ये एक नाउन फ्रेज है, तो इस तरह ये पूरा फ्रेज prepositional phrase बन गया। सेम इज द केस विद under the tree, between the houses, during the meeting। So this is prepositional phrase। The fourth one is adjective phrase। adjective phrase जो है वो आप देख सकते हैं कि she is very intelligent। यहां पे अगर मैं ये करूं कि very को मैं काट दूं, ठीक है, she is intelligent, तो यहां पे intelligent आप में से कोई बताएगा क्या है? Yes, please respond. According to the parts of speech, intelligent Adjective. शाबाश, एडजेक्टिव है, शी इज इंटेलिजेंट। और जब उसके साथ वेरी लग गया तो वेरी क्या है, सिर्फ मुझे वेरी के बारे में बताएं। शाबाश, डिग्री आ जाती है सर एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। नो, इंटेलिजेंट तो हो गया एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर इस चार, ये जो 4 वर्ड लाइन है इसको हम, तो शी जो है, शी क्या है? शी इज अ नाउन अकॉर्डिंग टू स्पीच। pronoun इज क्या है? helping verb वर्ब है, ठीक है। एडवर्ब है सर, हाँ, adverb एडवर्ब।
एडवर्ब, एक्सीलेंट, ये चीज मैं आपको, और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपने देखना है कि उसका फंक्शन क्या है। वेरी जो है दैट इज मॉडिफाइंग, किसको मॉडिफाई कर रहा है? इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट। मॉडिफाई कर रहा है। तो इंटेलिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई जो कर रहा है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। अच्छा, ये तो हो गई बात जी कि ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब बात मुझे ये बताएं कि इस पूरे फ्रेज को फिर हम क्या कहेंगे? शाबाश। इस पूरे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। सर क्योंकि ये नाउन फ्रेज को। अच्छा, किसी भी फ्रेज को, आपको मैंने बताया कि फ्रेज जो है उसका जिस तरह पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो अपनी पोजीशन और फंक्शन से पहचाना जाता है। जैसे आपने अभी वेरी को देखा कि वेरी जो है वो उसका फंक्शन क्या है इस वक्त? वो इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, तो आपने कहा ये जी एडवर्ब है। इसी तरह फ्रेज जो है उसको भी आपने ये देखना होता है कि वो एज ए क्या काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है इस वक्त। तो इस वक्त ये पूरा फंक्शन इसका जो है वो एडजेक्टिव का है, क्योंकि इसमें हेड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट मेन वर्ड है यहाँ पे, वेरी तो उसको मॉडिफाई कर रहा है ना, तो इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, ये फ्रेज पूरा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। सेम इज द केस विद द बॉय इज फुल ऑफ होप। अब यहाँ पे फुल ऑफ होप जो है एडजेक्टिव फ्रेज है। द गार्डन लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो है वो आपको पता है क्या है? एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली एडवर्ब है। तो ये पूरा क्या बन गया जी? शाबाश, लेट मी नो। ये फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज ही बनेगा। उसकी रीजन भाई ये है कि आप एक्सट्रीमली को काट भी दें तो फिर भी मीनिंग पूरा आ रहा है। द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये जो है एक एडजेक्टिव है। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई, कैन यू प्लीज टेल मी कि ये लुक जो है, लुक्स, ये क्या चीज है? द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल। लिंकिंग। लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब है ये। वेरी गुड। इस तरह के लिंकिंग वर्ब है जैसे लुक, सीम, ग्रू या ग्रो। ये लिंकिंग वर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव को लिंक कर रहे होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को किसी उसके साथ क्या कहते हैं इसको, ये मैंने आपको सिखाया था सेकंड पार्ट, जो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, ये पार्ट क्या होगा? द गार्डन सब्जेक्ट है, ये हो गया वर्ब लुक्स, और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए लिंकिंग वर्ब का काम ही ये होता है कि उसने कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ लिंक करना होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। एनी हाउ, कम टू द मेन पॉइंट नाउ। अब ये हमें पता चले कि ये जो अब ये फ्रेज है ये बना एडजेक्टिव फ्रेज। पाकिस्तान इज रिच इन कल्चर, ये फिर वही कि ये पूरा हमारे पास फ्रेज बन गया। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट लिंक कर रहा है पाकिस्तान को। इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द डॉग, यहाँ पे फिर इज लिंकिंग वर्ब है और ये इसको दोनों को लिंक कर रहा है। मेरा ख्याल है ये आपको समझ आ गया होगा। एडवर्ब फ्रेज जो है, जैसे हमने पीछे फंक्शन पढ़ा अभी अभी, एडवर्ब सेम इसी तरह। जैसे ये टुमारो है, इसको मैं नेक्स्ट टुमारो कर दूं तो वो फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, अगर सॉफ्टली है तो इसको मैं अगर कह दूं शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली तो वो फ्रेज बन जाएगा। एक वर्ड से ज्यादा जैसे ही होगा वो फ्रेज बन जाएगा। तो एडवर्ब फ्रेज जो है वो पूरा काम करता है, फंक्शंस एज एडवर्ब, ये एडवर्ब के तौर पे ही काम करता है। शी फिनिश्ड द वर्क हाउ? वेरी क्विकली। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ये इन अ लाउड वॉइस, ये एक क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये सारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। शी रोट द लेटर हाउ? विद ग्रेट केयर, एडवर्ब फ्रेज। द टर्टल मूव्ड हाउ? क्वाइट स्लोली।
ये एडवर्ब फ्रेज। गॉट माय पॉइंट जी? द चिल्ड्रन प्लेड वेरी हैप्पीली। हैप्पी, हैप्पीली तो एडवर्ब का, वेरी उसके साथ लगा तो ये फ्रेज बन गया, एडवर्ब फ्रेज बन गया। ओके जी। आगे आपने यहां पे क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन prepositional phrase and adverb phrase, जो आपने नहीं पूछा। सर प्रपोजिशन तो हमें किसी भी चीज की मतलब कोई भी चीज उसकी मतलब बताते हैं कि ये चीज यहाँ, जैसे हम लोग बताते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो मतलब उसकी पोजीशन बताते हैं कि वो कहाँ पर है वो चीज, मतलब उसकी। ठीक है, लेकिन आप अगर ये देखें, द डॉग स्लेप्ट अंडर द ट्री। ठीक है, चलें हम नीचे आते हैं, पहले एडवर्ब फ्रेज आते हैं, जरा डिफरेंस आपको बताते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज नो डाउट इसी तरह होता है कि प्रेपोजिशन से शुरू होती है और आगे नाउन या प्रोनाउन आ जाती है, जैसे इन द रूम, ऑन द टेबल, अंडर द ट्री। लेकिन एडवर्ब फ्रेज जो है उसका फंक्शन हमें बताता है कि वो उस सेंटेंस में कर क्या रहा है। जैसे शी कंप्लीटेड द वर्क वेरी क्विकली। देखिए आप, जैसे विद ग्रेट केयर, अब विद भी तो प्रेपोजिशन है ना, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एज, इसका फंक्शन इस वक्त प्रेपोजिशन का नहीं है, इसका फंक्शन इस वक्त एडवर्ब फ्रेज है। ही स्पोक, आगे क्वेश्चन आ जाता है हाउ, तो इसका आंसर होगा विद ग्रेट केयर। आप समझ लगी आपको कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है दैट समटाइम्स फंक्शंस एज एन एडवर्ब फ्रेज, कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो एडवर्ब फ्रेज के तौर पे भी काम करता है, और वो हमें कैसे पता चलता है? उसके फंक्शन से पता चलता है हमें। इज इट क्लियर? फ्रेजेस में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, वरना मैं क्लॉजेस पे चलूं। सर आप ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं किस चीज को? सर? ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज और जो नहीं था कि आपने कहा था कि जो उसके साथ मतलब जो करते हैं वर्ब के मेरी बात फ्रेज के सुने, साथ फंक्शन। देखिए मुझे एक बात बताएं कि द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, ठीक है, पोजीशन बता रहा है ना, यस सर। आर ऑन द टेबल, द डॉग स्लेप्ट वेयर अंडर द ट्री। ये देखें, ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, सही है? यस सर। पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या आपको लगता है? चलेंगे मुझे बताएं, ये लास्ट वाला देख लें, द डॉग स्लेप्ट अंडर द ट्री। ये अंडर द ट्री जो है, ये इस वक्त किसको मॉडिफाई कर रहा है? डॉग को क्या उस किसको, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है ये? slept. में ये बता रहा है कह कि सकते हैं कि ये फ्रेज जो है ये एडवर्ब फ्रेज भी है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है ना, स्लेप्ट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि समटाइम्स सेम फ्रेज जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज के तौर पे भी काम करता है। आप बात की समझ लगी? ये देखें लास्ट वाला सेंटेंस देखें, ही स्पोक विद ग्रेट केयर। तो ये स्ट्रक्चर वाइज जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सही है, लेकिन इसका फंक्शन वाइज जो है ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये स्पोक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ही स्पोक, तो आगे क्वेश्चन बनता है हाउ, तो आंसर है विद ग्रेट केयर। कुछ समझ लगी बेटा? यस सर। हाँ शाबाश, चलें आगे चलते हैं। आगे क्लॉजेज हैं कि क्लॉजेज जो हैं आपको पता है इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है और डिपेंडेंट क्लॉज मैंने सिखाया हुआ है। द डॉग बार्क्स ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, वो उस पे इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करेगा, वो अकेला नहीं आ सकता, कैन नॉट स्टैंड अलोन, रिलाइज ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो सबसे पहले नाउन क्लॉज को देखते हैं हम, कि नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट देखें, व्हाट ही सेड इज ट्रू। आपने इसको बताएगा ये क्या लिखा हो, इसका मतलब क्या है? व्हाट ही सेड इज ट्रू।
इसका तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा मुझे बताएं। व्हाट ही सैड इज ट्रू। जो उसने बोला वो सही है। शाबाश। व्हाट ही सैड, यहाँ पे व्हाट जो है वो इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है। व्हाट ही सैड, जो उसने कहा, इज ट्रू, सच है, जो उसने कहा वो सच है। तो यहाँ पे व्हाट ही सेड, ये पूरा फ्रेज जो है, क्लॉज जो है, ये नाउन क्लॉज है। और आपको पता है कि क्लॉज में वर्ब जरूर होता है। ये देखें, इसमें ये वाला वर्ब है, ये क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, इज ट्रू। ठीक है। आई नो, और ये आंसर हमेशा व्हाट का देता है। आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट, ये भी एक नाउन फ्रेज है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी प्रोनाउन के साथ। आई नो इट, आप किसी नाउन के साथ भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आई नो अली, ठीक है। तो आप नाउन के साथ भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आप प्रोनाउन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। वेयर ही लिव्स इज अननोन, ये भी नाउन फ्रेज है। शी एक्सप्लेन्ड व्हाई शी वॉज लेट, व्हाई शी वॉज लेट, ये भी नाउन फ्रेज है। तो शी एक्सप्लेन्ड, ये इसका क्वेश्चन बन सकता है ना, व्हाट, तो आगे आंसर आएगा व्हाई शी वॉज लेट, तो ये व्हाट का आंसर देता है। हु विल विन द मैच इज अनसर्टेन, हु विल विन द मैच, ये अभी तक कहता है कि गैर यकीनी है कि कौन मैच जीतेगा। एडजेक्टिव क्लॉज जो है, ये अभी अभी हमने नाउन क्लॉजेस पढ़े सारे। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो आपको पता है कि हमेशा नाउन को मॉडिफाई करेगा। द मैन एक नाउन है। हु इज स्पीकिंग, अब हु इज स्पीकिंग जो है ये मॉडिफाई कर रहे हैं मैन को, ठीक है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। द मैन हु इज स्पीकिंग इज माई टीचर। द बुक दैट यू गेव मी, अब दैट यू गेव मी ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, बुक को मॉडिफाई कर रहा है। सो इसलिए ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। द स्टूडेंट हु स्टडीड हार्ड, हु स्टडीड हार्ड जो है वो स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। द हाउस विच वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, ये पूरा क्लॉज जो है एडजेक्टिव क्लॉज। द गर्ल हु वन द प्राइज इज माई सिस्टर, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज को देखेंगे। एन एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाइज अ वर्ब। आई स्टेड होम, तो ये क्वेश्चन है इसका, व्हाई, तो आगे इसका आंसर है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। शी विल कम व्हेन द मीटिंग एंड्स, अब ये क्वेश्चन बनता है व्हेन, शी विल कम व्हेन, तो आंसर है व्हेन द मीटिंग एंड्स। ही वर्कड हार्ड ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, ही वर्कड हार्ड, अब यहां पे ये ऑल्दो से ये भी एक हमारे पास एडवर्ब है। कॉल मी व्हेन यू अराइव, ये पूरा एडवर्ब क्लॉज। वी विल स्टार्ट व्हेन आफ्टर द टीचर अराइव्स, तो ये आपने देखा इसमें ज्यादा इसने आंसर दिया है व्हेन का,